किस किस में? It is indeed an honor to me. मेरी अम्मू आई है? मैं हस्बैंड हूँ उनका। आप हस्बैंड हो? आपके खिलाफ केस किया है? इन्होंने एक की है। संजय चौधरी इंगिलजा ये सर वो जो रिकवरी का था ना अनवर हुसैन का, इसमें एग्जीक्यूशन के लिए दिया हुआ है। हाँ, इसमें तो मेरे ख्याल से बात होगी है शायद। इसमें आपके वकील साहब है ना? कौन है आपके वकील साहब? इसमें आपने लिखा कि मैं पैसा देने को तैयार हूँ। नहीं ये नहीं सर, ये अनवर हुसैन नहीं। दूसरी पार्टी का है? आया नहीं ना, आया आ जाएगा। अभी थोड़ा देर हमारा कोई केस तो आ जाएगा, रुको क्या आ जाएगा बात। रुको everybody, and it is indeed a honor to me to stand before you today under the direction and able guidance of the Honorable Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir, Ladakh, Honorable Executive Chairman, Ladakh Legal Service Authority, and Honorable Administrative Judge Leh. You are organizing this National Lok Adalat. Lok Adalat means people's court. It is a court of people. People who come here out of their long drawn legal battles. They come here to settle their disputes and without any cost. That is, it is free of cost. They come here and with their cases, civil matters, family matters, small criminal matters, and even pre-litigation cases, they are taken up before Lok Adalat. It saves the time of the public and it saves the time of the court and resources also. It is such a mechanism that it gives power. It gives power to the strength of the legal system and it brings justice to the people, fair and without any cost and expeditiously. The people, they are not forced. It is out of their amicable settlement the cases are settled here. And I must tell you, it is a win-win position for everyone. It is not like that ki one party or any of the party, any stakeholders is going to lose anything. It is a win-win position. And as a matter of fact, we are organizing this National Lok Adalat in Ladakh, which is a peaceful area and having the community ties among the people. I urge the people to come in a large number for settling their dispute fairly and without cost. And for this matter, today we have 4 benches to take up the matter. All the 4 benches, they are taking the matter separately. Separately means which can be amicably settled before the Lok Adalat. And I am hopeful large number of cases with the cooperation of the bar and the public, every stakeholder into it, large number of cases will be taken up and they will be amicably resolved. Thank you. Thank you, sir. Ngawang namgel simple injury cost to ngawang namgel. So you have to get the client. So वो कीजिए फिर कंपाउंडेबल उठाना पड़ता है both applications, compoundable as well as the confession application. ठीक है? बोला ये मैं पासवर्ड कर रही हूँ. ये संजय शांगे
संजीन चंगेज दूसरा वाला स्टेट का कोई और केस है? ये इसको फाइल कीजिए इसमें। कौन रुको संजीन चंगेज? ما تقوم आपके क्लाइंट्स का 18,50,000 का चेक। और आप बोल रहे हैं ये सारा अमाउंट है वो पेंडिंग का पहले का है। वो पहले का है। ये चेक इशू करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला है, 1 रुपया भी। तो बस आप फिर उसमें फिर रिकवरी करने अगर यास में लोग अदालत में होगा तो अदरवाइज फिर नॉर्मल प्रोसीजर में जाएगा। आज तो फिर रिकंसिलिएशन किए रखा है। एग्जामिनेशन फॉर टुडेस हियरिंग्स एंड ऑन द ग्राउंड ये वो सारे मैक्सी क्या का व्हीकल्स है क्या है? मैक्सी के देना। या और आपने 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इस 138 में फाइल नहीं किया है? पहले किया था ले, इसमें कंप्रोमाइज हो गया ना ले, ये एक्सीक्यूशन है ना। क्या डिसाइड हुआ था उसमें? उसमें को पूरा क्लियर ना 1855 They have settled the dispute amicably with an amicable settlement in order to discharge the amount of 18,50,000. The respondent shall. कहाँ है आपका client? तो वाले पकड़ ले। नहीं, he has to come. He has to come. This is execution. He has to come. Otherwise, तो फिर उसको फिर मैं I have to put him behind the bars. ठीक है? He has to come and then he has not paid anything. Whatever he is stating that he has paid, उसमें कुछ नहीं आया है. Party is here. 18,50,000. ये आप आज क्यों दे रहे हो? नहीं 10 दिन سلام आज की डेट क्या है? टमाटर म्युनिसिपल कमेटी वाला ना तो फिर क्या करना है इसमें बताओ। मुझे याद है इसमें आपका कुछ मैटर हो नहीं रहा था ना रिजॉल्व। फिर आज लास्ट देखिए आई एम रेफरिंग बैक टू द कंसर्न। ठीक है आप प्लेटिव है कि ये एप्लीकेंट है नॉन एप्लीकेंट? आप एप्लीकेंट है? यस मैम। تشينا ستانزين نانجل Taşınan gelstanzın alıyor. Kaşepi इसमें कल बताइए प्री लिटिगेशन अलाउंस विद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये आपका वो था ना इसमें यही if it can't be resolved then you take it back dismiss। आज मैं करके हम रेफरिंग बैक नेक्स्ट सैटरडे को 15th को। ठीक है। तो हम डिसमिसिंग इट ज़्यादा नहीं हो रहा तो मैटर टेक कुछ भी नहीं देना क्योंकि अपर लिमिट है नहीं ना कुछ लोअर लिमिट तो किस तरह से किया है खुद अकाउंटेबल होगा तो दूसरी चीज़ यूज और एग्जीक्यूटिव होता ना कलेक्शन। अच्छा ठीक है बात होगी इनसे? सर मैं तो पहली बार ही मिल रहा हूँ अभी भी। अच्छा कितना लोन है जी? सर इनका आउटस्टैंडिंग जो मतलब वो करके है सर वो है 579 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट? नहीं सर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सर ओनली इट्स ओनली प्रिंसिपल। जी देखो जी अजय थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पे ये प्रिंसिपल अमाउंट है ठीक है ना। पहले हम इनका प्रपोजल देखते हैं क्या आपका प्रपोजल क्या है? सर ये मतलब इंटरेस्ट वगैरह वेव करके प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल कोई इंस्टॉलमेंट फिक्स कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? सर वो तो अभी से हम चाह रहे हैं कि सर 100 हो पहले जाएगा। आप ये बताओ ना आपका इंटरेस्ट के समेत कितना है? विद इंटरेस्ट कितना बनता है? सर ये जो ये इस कोर्ट के लिए सर जो हमने जो ऊपर हेड ऑफिस से आया था सर तो ये आया था कि प्रिंसिपल तक हम एसोसिएट कर सकते हैं सर। नहीं वो तो अभी बाद में करें ना पहले आपका कितना बनता है विद इंटरेस्ट फिर इसको बताएगा तभी इसको समझ में आएगा। ठीक है सर 7 लाख 8 लाख जितना मुझे इसमें एप्लीकेंट आप खुद भी कितने टाइम के बाद आ रहे हैं? मैं तो थोड़ा सा था ना This was supposed to be disposed. अभी तो इसमें otherwise it's supposed to be dismissed. फिर they have not given you your fees. Yeah, okay, Central Government Standing Council. Issue notice again. Placing it for 22nd. ठीक है? फिर से issue notice होगा इसमें. 22nd clear रखिए. 22 दिन 22 दिन
How much is the amount? 180 something. You should notice the amount of the call.